मतलब she is already a married lady. Hmm. Deal with the promise of marriage with me and the marriage of mine. She was already married. No divorce has taken place. आवेदन दिया कोर्ट में, मेरी चुनाव ड्यूटी, इसलिए मैं गवाही देने नहीं आ सकती। आपको कुछ कहना है मैडम? इस्माइल सैयद पहला केस नहीं है उसका, वो हैबिचुअल अपराधी जैसा। उसने मेरे ही साथ नहीं, माननीय उच्च न्यायालय के साथ भी चीटिंग की, क्योंकि आपकी अदालत से उस पे एक और बहुत सारी कार्रवाइयां हुई हैं। तो एक अपराध को छुपाने के लिए निरंतर अपराध करते जाते। ठीक ठीक। तो सर हमारे कुछ गवाह रह गए हैं अभी। कौन रह गए? जिस तरीके से उन्हें हमको डरा धमका के यहाँ पे झूठे कथन करवाया था। अरे मैडम, अभी कौन गवाह बचा है आपका? 2 लोग हैं। कौन कौन है, नाम बताइए। उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश निरंतर कर रहे हैं सर। नहीं, कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं होता, ये आपका काम नहीं है, प्रोसिक्यूशन का काम है। पेश कराइए इनको। रिपोर्ट क्या है, क्यों नहीं आ रही है गवाह? Now she has been examined, my lord. Evidence is over, my lord. जी This is a case whereby, my lord, liberty was granted by my lords that after the examination of prosecutors to file the present bill application, my lord. Thereafter, this has been filed, my lord. Undisputed it has come, my lord. She is already a married lady. Before deal with the promise of marriage with me and the marriage of mine, she was already married. No divorce has taken place. Now 4 times she has tell the truth in the court, tell the false statement in the court, my lord. First she said that my statement will be recorded before the Registrar General. This statement was recorded. Now she is saying it was under pressure. Second statement, and the last date of hearing, she said the presiding officer and the steno of the court are not working properly, my lord. So my lord has given an observation. The matter was transferred to another court. Now the statement has been completed, my lord. where is the statement? My lord, that is already on record, my lord. Annexure. That has come on the cross examination. My lord, she has been examined, my lord. जी. The delay has been caused, my lord, on their reason, my lord. She has made an application before the trial court that she is in election duty. We have cross-examined on that point also. She said that my counsel has filed that I am on election duty. I was not on election duty. That's why one day she did not come. Thereafter, she appeared before the honorable court, said that the presiding officer and steno is not writing whatever she is saying. So, my lord, so please to direct the district judge to pass an order and the transfer order. अभी तो ये बताइए ना. No, she has been examined, my lord. She had. So what she has said? She has admitted, my lord, she is a married lady. ठीक है, बताइएगा. My lord. Coming with para 12 onward, my lord. Para 12. चलिए. Page number 7. जी. पैरा 12 में क्या लिखा है? सर ये जब फर्स्ट 482 में आपने डायरेक्शन दिए थे कि रजिस्ट्रार साहब के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, ये बात सही है। मतलब पैरा 2 माननीय उच्च न्यायालय में मैंने आरोपी को पत्नी होना बताया था और निगाह होने की बात भी बताई। पैरा 12 पढ़ रहे थे ना? जी सर। हाँ। मुझे याद नहीं है कि मैं आरोपी की जमानत पर अनापत्ति देने कितनी बार हाईकोर्ट गई। ये बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय में मैंने आरोपी की पत्नी होना बताया था और निकाह होने की बात बताई थी। ये कहना सही है कि हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार साहब के सामने भी मेरे बयान हुए थे। मुझे आज याद नहीं है कि आरोपी नूरे सभा होटल आया था तो उसके आने के समय कितने बार होटल बुक कराई थी। ये क्या रिलेवेंट है? नहीं, ये सिर्फ इतना कि आप ये कह रहे थे ना कि शादीशुदा। हाँ, वो पैरा 19 में सर। अभी तो आप 12 बता रहे थे। वो लाइन आई थी हाईकोर्ट में पहले स्टेटमेंट। जी, फिर मेरी शादी जिला कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008 में एनोलक से हुई थी। ये कहना सही है, मैंने प्रदेश P1 के आवेदन पत्र D1 के कथन एवं न्यायालयीन कथन देते समय ये नहीं बताया कि मेरी शादी कौशाम्बी में एनोलक से हुई थी। स्वतः का किसी ने पूछा नहीं था, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं था। मैं वर्ष 2009 से एनोलक से अलग रह रही हूँ। ये कहना गलत है कि मैंने पुलिस एवं धारा 164 के कथन में मेरी शादी होने वाली बात जानबूझकर छिपाई थी। ये सही है कि इस्माइल सैयद पर धारा 420 भारतीय दंड विधान का एक अन्य प्रकरण चल रहा है जिसमें मैं फरियादी हूँ। ये कहना सही है कि उक्त प्रकरण में मेरा मुख्य परीक्षण और कुछ प्रतिपरीक्षण हुआ है। ये कहना सही है, मैंने उक्त दूसरे वाले केस में भी एनोलक से शादी करने संबंध में नहीं बताया। तलाक की बात कहाँ आई है, कहाँ पूछा है आपने? नहीं, वो पैरा 34 इसलिए ये नहीं बोला कि तलाक हुआ, इसी ने नहीं बोला है। अरे भाई, मेरे पति हैं। पैरा 34 आपने कब पूछा उनसे? पैरा 34 में उसने ये एडमिट किया कि मेरे पति हैं। शी इज नॉट सेइंग कि मेरे पूर्व पति हैं, या एडमिशन ये है कि मैं पति हूँ। सेक्शन 58 ऑफ एविडेंस एक्ट खुद ही कह रही है कि मेरे पति हैं। इसने खुद ही नहीं बोला कि कभी तलाक हुआ। मेरे पति हैं। वो जो मैं बात बता रहा था लास्ट टाइम आपने टाइम दिया था, पैरा 18 में है सर। वो क्या है 18 में? वही कि इन्होंने बताया था कि मैं चुनाव आवेदन दिया कोर्ट में, मेरी चुनाव ड्यूटी, इसलिए मैं गवाही देने नहीं आ सकती। आई एम इन कस्टडी से, मतलब आपका लिबर्टी के बाद भी मुझे मोर देन 1 ईयर हो गया इस डिले के वजह से। ये कहना सही है कि मैं सिविल सर्जन मुख्य अस्पताल सिवनी में कार्यरत हूँ। ये कह सही है कि हमारे कार्यालय द्वारा वर्तमान विधानसभा चुनाव में मुझे ना कोई कार्य दिया गया, ना मैं चुनाव ड्यूटी लगाई थी। स्वतः कहा कि छुट्टी ना लेने के आदेश थे। साक्षी ने D2 का आवेदन पढ़कर बताया कि उसमें लिखी हुई बातें उसने अधिवक्ता को नहीं बताई थी। मैंने दूसरी बातें बताई थी जो इसमें नहीं लिखी है। कहना गलत है कि D2 का आवेदन पत्र मैंने असत्य रूप से अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कराया था। वो डिले इस वजह से हो रहा था सर। अच्छा। नाउ शी हैज बीन एग्जामिन्ड। एक ही विटनेस हुआ सर, आई एम इन कस्टडी। 9 महीने डिले FIR है सर। और कौन से मटेरियल विटनेसेस हैं? कितने विटनेस हैं? मेन तो यही 17 विटनेस, 17 विटनेस टोटल 17। मेन यही थी सर। इसी आपने लिबर्टी दी थी फर्स्ट बेल में।
कहाँ है वो ऑर्डर? my lord, that is on record, my lord, page 17 and 18, my lord. Page 18 is second bill. A2, my lord, page 15. जस्ट अ मिनट। ठीक। थर्ड है ये, सेकंड बिल में क्या हुआ? आपने वो लिबर्टी दी Second थी। is page 17 man. हाँ, फर्स्ट First is page 15. बिल में लिबर्टी मांगी थी चैटिंग से कन्फ्रंट करने की, किया है हाँ आपने? कर दी मैंने, वो एग्जिबिट एविडेंस में आया सर। हाँ बताइएगा। मान पैरा 27 मान लो, एक मिनट स्पेसिफिकली। पैरा 27, एक मिनट। आपको कुछ कहना है मैडम? जी बताइए। मेरा एक निवेदन था जी। कि इस्माइल सैयद पहला केस नहीं है उसका, वो हैबिचुअल अपराधी जैसा है। और उसने मेरे ही साथ नहीं, माननीय उच्च न्यायालय के साथ भी चीटिंग की, क्योंकि आपकी ही अदालत से उस पर एक और बहुत सारी कार्रवाइयां हुई। ठीक। तो एक अपराध को छुपाने के लिए निरंतर अपराध करते जा रहे हैं। ठीक ठीक। और सर हमारे कुछ गवाह रह गए हैं अभी। कौन रह गए हैं? जिस तरीके से उन्हें हमको डरा धमका के यहाँ पे झूठे कथन करवाया था। अरे मैडम, अभी कौन गवाह बचा है आपका? 2 लोग हैं। कौन कौन है, नाम बताइए। आफाक खान और आफाक खान और उनके ड्राइवर थे। क्या नाम क्या है ड्राइवर का? फरहान। है? फरहान खान, आफाक खान और फरहान खान। उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश निरंतर कर रहे हैं सर। नहीं, कांटेक्ट करने की कोशिश जो, तो ये आपका काम नहीं है, प्रोसिक्यूशन का काम है। पेश कराइए इनको। क्यों नहीं, आपकी रिपोर्ट क्या है, क्यों नहीं आ रही है गवाह? नहीं सर अभी एक मिनट रुक तो जाओ भाई, एक मिनट रुक तो जाओ जी। हमारा कंप्लीट हुआ है, अब इन लोग का हाँ, नंबर कब अगली डेट कब लगी है? 24 तारीख। 24 फरवरी लगी, 24 फरवरी लगी है। 24 फरवरी को आप दोनों को पेश करेंगे। इसको हम रखते हैं केस को अगले हफ्ते। लिखिएगा, श्री अंकित सक्सेना, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट। श्री नितिन गुप्ता, learned counsel for the state. Prosecutrix is present in person. She submits that 24 February is the next date for evidence of remaining witnesses. 2 of her major material witnesses, namely Afaq Khan, AFAQ. Afaq Khan, AFAQ होगा ना? Afaq. Afaq Khan, Mohammad Afaq. and Farhan, Mohammad Farhan are to be examined. Let these witnesses be produced before the court on 24 फरवरी positively. Trial program. होगा, हमें नहीं मालूम, आप प्रोड्यूस करिए। Let their statements be recorded promptly by the trial court and they be subjected to cross examination if any. List this case on 27 फरवरी। चलिए।